Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, dear scholars, in this our fourth lecture. And today is Sunday. Very good morning to all of you. I hope all of you will be fine enough. By all means, I would like to request class representative GR to take screenshots for attendance and manage them according to roll number. And please do forward me on WhatsApp. I will be very thankful to you. Earlier in the previous classes, we learned about uh, the research design, that was experimental research design. You know, there are multiple designs. One of them was we discussed, that was experimental research design. And today uh, we have to discuss the correlation research design. For you, announcement is this: if you do have any question, please raise your hand from there, and I will reply your query. Otherwise, we are on our way to learn about the correlational research design. The nature of correlational research. May I ask all of you, do you can you listen me? Ji Muhammad. Hello. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद कासिम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइएगा कि मैं बाद में एनरोल हुआ हूँ, तो असाइनमेंट्स शो हो रही हैं कि पहले 3 गुजर गई हैं, तो उनकी ड्यू डेट भी गुजर गई है, तो ठीक। हमारे लिए फिर क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? हाँ, इस तरह है कि अभी लास्ट सेशन में इस पर बात करते हैं। अभी सारे लोग नहीं आए। 38 हो तो मेरे ख्याल 58
60 लोग हैं टोटल ना, तो जी बिल्कुल मैं मेरे जहन में रहेगा, मैं इस पे बात करता हूँ। ठीक है। जी ठीक हाँ। ठीक। uh, Sana from can you listen me please? GR, can you listen me? Correlational research is also known as associational research. As from the name is reflected that correlation, it will be a relationship between more than one variables. So that is why it is also known as the associational research, that means association of one of the variable with any of the other. Relationships among two or more variables are studied without any attempt to influence them. Investigates the possibility of relationship between two variables. There is no manipulation of variables in correlational research. Uh, in experimental research, we learned that manipulation must be done by the researcher. But here in correlational research, no sort of any manipulation is carried out. Three sets of data showing different directions and degrees of correlation. You can see a data set A and second data set B and third data set C. Here in A, X is independent variable and Y is dependent variable. You can see in the column 1, below X there is written 5, 4, 3, 2, 1. It means that the ratings are tallies for variable X starts from 5 to 1. इसका ये 5 रेटिंग स्केल है, इसमें 5 हाईएस्ट वैल्यू स्टार्ट में आ रही है and it ends at 1. And same for Y. When both of the variables, independent and dependent, have similar nature of data, then the relationship between them, that is known as the correlation and is denoted by small r. Written here, r is equal to +1. So this means that uh, there is positive correlation between the variables.
But in the data sets B, you can see the values for independent variable, that is X, are accordingly as were in the previous, where there it starts from 5 to 1. But data set for dependent variable Y is reversed. Its highest value is in the end, and it starts from 1. That means uh, ascending order. For X is descending order, but for Y is ascending order. So here we can see say the correlation between independent and dependent variable is reversed, not positive, not direct. पहले डाटा सेट ए में आर की वैल्यू +1 आ रही है, इट मीन कि एक्स और वाई जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके अंदर कोरिलेशन जो है वो डायरेक्टली है, डायरेक्ट कोरिलेशन है. बट in data set B there is reverse correlation, and for data set C no relation exists. There is no correlation between independent and dependent variable, because you can see here the values data set for independent variable and for dependent variable have no any relationship between them. There is no sequence, there is no certain set of values which are directly or indirectly related to each other. Therefore, we have studied about 3 types and different directions of and the degree of correlation. Here, if I say about the directions, तो directions जो हैं वो आप देख रहे हो कि डाटा की डायरेक्शन है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और डिग्री ऑफ कोरिलेशन जो है वो रिवर्स है या डायरेक्ट है. लेकिन थर्ड सेट में डाटा की कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है. इसका मतलब है कि ये जम्बर्ड अप डाटा है. जब इनकी आपस में कोई डायरेक्शन नहीं है तो कोरिलेशन की डिग्री भी एग्जिस्ट नहीं करती. Purpose of correlational research. Correlational studies are carried out to explain important human behavior or to predict likely outcomes, identify relationship among variables. ये एक ट्रेंड को शो करने के लिए, मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है कि किस तरह का बिहेवियर लोगों का बन रहा है, वेरिएबल्स की आपस में रिलेशनशिप क्या बनता है. If a relationship of sufficient magnitude exists between two variables, it becomes possible to predict a score on either variable if a score on the other variable is known as prediction studies. So it helps in the prediction what will be in future setup कैसा होगा, उन variables की relationship की बुनियाद पर हम बता सकते हैं. The variable that is used to make the prediction is called predictor variable. So earlier we studied about independent and dependent variable. Therefore, today from the correlational research purpose, it is concluded that on the basis of the nature of relationship of independent and dependent variable, a third variable is established that is known as the predictor variable. It means that the correlation between independent and dependent variable, the nature of correlation between independent and dependent variable
leads toward the prediction, and that variable is known as the predictor variable. The variable about which the prediction is made is called the criterion variable. Very interesting. The variable about which the prediction mean the correlation of independent and dependent variable leads toward the predictor variable, and predictor variable guides toward the criterion variable. So scatter plot is used in correlation studies to predict a score on a criterion variable. Scatter plot mean in a certain number set of data को हम उसमें x एक्सेस y एक्सेस के अलॉन्ग जहाँ उनकी वैल्यूज बनती हों वहाँ पे ड्रा करते हैं, और फिर उनके दरमियान कोई जो रिलेशनशिप बन रहा हो उसको हम देखते हैं किस तरह का रिलेशनशिप बनता है. तो likewise such type of plot is known as the scatter plot. ये DHA प्लॉट की बात नहीं हो रही, ये हमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज के अकॉर्डिंग बात हो रही है. इसको डिटेल में देख लेते हैं. एग्जाम्पल, what if any relationship exists between the number of words read in accelerated reader program and scores on the language arts section Georgia High School graduation test for students at rural Georgia High School. कहता है किस तरह का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा between the number of words read in an accelerated reader program. नंबर 1 ये एक सेट है डाटा का जहां से मिलना है एक्सेलरेटेड रीडर प्रोग्राम, और दूसरा क्या है स्कोर्स ऑन द लैंग्वेज आर्ट सेक्शन. लैंग्वेज आर्ट सेक्शन का जो स्कोर्स हैं वो इन दोनों के दरमियान किस तरह का कोरिलेशन एग्जिस्ट करेगा किसी हाई स्कूल के स्टूडेंट्स में. तो ये एक रिसर्च प्रॉब्लम है, रिसर्च स्टेटमेंट है, रिसर्च टाइटल है या टॉपिक है कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन का. इसको यूं भी कह सकते हैं, इज देयर एनी सिग्निफिकेंट कोरिलेशन between accelerated reader program and scores on the language arts section towards number of words. ये जो बच्चे नंबर ऑफ वर्ड रीड करते हैं एक एक्सेलरेटेड रीडर प्रोग्राम में और दूसरा आर्ट लैंग्वेज सेक्शन में हाई स्कूल के स्टूडेंट्स, तो क्या उनके इस टेस्ट में जो टेस्ट लिया जा रहा है कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है. इसके लिए आप देखें कि नल हाइपोथेसिस जो बनेगा वो है there is no relationship between the number of words read in the accelerated reader program and higher language arts Georgia High School students test. इनका एक टेस्ट लिया गया, टेस्ट स्कोर के दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, नल हाइपोथेसिस है. लेकिन अगर आप देखें आगे अल्टरनेटिव H1A अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आर द रिसर्च हाइपोथेसिस आपने पढ़े हैं. stated that there is a relationship between बाकी वर्डिंग आ गया ऐसे ही number of words read in accelerated reader program and higher language art high school test scores, high school students test scores. तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक्सेलरेटेड रीडर प्रोग्राम है, तो उसके थ्रू वर्ड्स पढ़े गए. दूसरा जो है वो कह लें इंडिपेंडेंट वाई वेरिएबल है, वो है हायर लैंग्वेज प्रोग्राम. और स्कोर इन दोनों का टेस्ट कंडक्ट किया गया, उस टेस्ट का कुछ स्कोर होगा, बच्चे जो हासिल करेंगे उनको आपस में कोरिलेट किया जा रहा है. रिसर्च साइट जो है वो हाई स्कूल है, जॉर्जिया हाई स्कूल, और
ग्रेजुएशन, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स ऑफ जारजा हाई स्कूल ग्रेजुएशन टेस्ट के पार्टिसिपेंट्स। Another example, अच्छा इसके लिए सेकंड वो कर रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं। सिमिलर सेट है, सिमिलर रिसर्च साइट है, सिमिलर पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, रूरल हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनका टेस्ट है, वहाँ आर्ट ग्रुप था, यहाँ साइंस सेक्शन, ठीक, वहाँ आर्ट्स सेक्शन की बात हो रही थी, यहाँ साइंस सेक्शन की बात हो रही है। इसके लिए आप देखें कि hypothesis 2, null hypothesis H2 naught, there is no relationship between the number of words read in accelerated reader program and higher science Georgia High School test score for the students at rural Georgia. और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में कहा गया है कि उनके अंदर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। थर्ड एग्जांपल इसी की, सोशल स्टडीज, पहला आर्ट सेक्शन था, दूसरा साइंस ग्रुप है, तीसरा सोशल स्टडीज है। तो ये तीन एग्जांपल्स रिसर्च स्टेटमेंट्स देके उनके नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या रिसर्च हाइपोथेसिस बताए गए हैं। अब इन तीनों का जरा देखें, आर कैसे फाइंड करते हैं। वर्ड एंड स्कोर इन लैंग्वेज आर्ट, जो पहला हमारा रिसर्च प्रॉब्लम था और हमारा नल हाइपोथेसिस था, और -1 सेमेस्टर, यानी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का स्कोर है आर इज इक्वल टू 0.33, थर्ड सेमेस्टर में 0.37, फिफ्थ सेमेस्टर में R is equal to 0.43. I must clear here, R stands for the correlation between the score gained through accelerated word reading program and language art. Second में words and score in science, फर्स्ट सेमेस्टर में इसमें देखें इसकी R की वैल्यू और है, थर्ड सेमेस्टर में और है, फिफ्थ सेमेस्टर में और है। और सोशल स्टडीज़ में आप अगर देखें तो वर्ड्स और स्कोर जो है उनकी वैल्यूज़ ये डिफरेंट है। तो ये तीनों एग्जांपल यहाँ बताने का मकसद ये था कि एक्चुअली देखना ये था कि आर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो हमने नल हाइपोथेसिस भी 3 बनाए और तीनों अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाए। हमारे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गए। नल हाइपोथेसिस में हमने ये क्लेम किया था कि उनके दरमियान में किसी किस्म का कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये रिसर्च के चूँकि रिजल्ट्स हैं इसी के, तो यहाँ पे आर की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और कुछ ना कुछ आ रही है, तो इट मीन्स के कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है वर्ड और स्कोर में, तीनों की बुनियाद पर, लैंग्वेज की बुनियाद पर भी, स्कोर की बुनियाद पर भी और सोशल स्टडीज़ की बुनियाद पर भी। वैल्यू डजेंट मैटर कि वो कितनी आ रही है, 0 पॉइंट समथिंग वट एवर इज, वो आ रही है। जी मारिया मकसूद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर यहाँ पे तो ठीक है, अगर आर की वैल्यूज जो हैं वो आ रही हैं, व्हाट इफ देयर इज नो रिलेशनशिप, लाइक इफ द नल हाइपोथेसिस अप्रूव्ड, हाँ, इफ तो फिर नल, हम क्या लिखेंगे? जी, इफ नल हाइपोथेसिस इज अप्रूव्ड देन आर की वैल्यू 0.00 होगी। 0.00 means we are not going to add any minus sign with the value.
माइनस हो और वैल्यू हो, दैट इज अगेन द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप, वो नेचर उसकी मुख्तलिफ है। ओके ये ओके पॉजिटिव कोरिलेशन है, यानी डायरेक्टली कोरिलेट कर रहे हैं, वहां पे ओके सर, रिवर्स, वहां पे रिवर्स रिलेशनशिप हो जाएगा। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम, वेरी गुड क्वेश्चन, आई एम हैप्पी टू लिसन दिस क्वेश्चन। So if it is clear to you, I should go ahead for third design, that is known as the survey research design. First was the experimental research design, second was correlational design, that was very much simple, and now is the survey research design. This survey research design is in practice across the world at large, and rigorously organizations, students, and other people go for this because it is very easy to conduct and easy to handle the data, and data at large. Maximum data can be collected through this. What is survey research? According to Creswell, survey research design is, मुझे GR का रिप्लाई नहीं आया, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड कि अटेंडेंस आप में से कोई ले रहा है कि नहीं। अगर आप में से कोई और ये काम कर ले, डू दिस। ये मेरे सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है नंबर, ओबिया अकरम जी, नुसरत नाज, हेलो नुसरत नाज। यस सर, सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। थैंक यू। पूरी अटेंडेंस फिर उसको ना मैनेज करना है, सारे स्क्रीनशॉट लेके ना, तो रिपीटिशन वाले निकाल देने हैं, एक एक दफ़ा बस मुझे भेजने हैं, और कोशिश करें अगर वो रोल नंबर वाइज हो तो ज़्यादा अच्छा है। जी तो सर। पार्टिसिपेंट्स से मेरी दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ अपना रोल नंबर और नाम उसके साथ लॉगिन हुआ करें, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, किसी का क्वेश्चन था स्टार्ट में, तो मैं ये क्लियर करूं कि वो लोग जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है इस क्लास को, जिनके स्टार्ट में लेक्चर मिस हुए हैं, जिनकी असाइनमेंट्स किसी वजह से मिस हुई हैं, नहीं वो एनरोल नहीं थे तो वो अपलोड नहीं कर सके, मैंने CMS पे अपना ऑफिशियल ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ से अनाउंसमेंट में किसी जगह पे होगा, देख लें, उस पर आप मुझे ईमेल करेंगे, और जो ईमेल आपकी होगी उसके अंदर ये चीज़ें होंगी तफसील के साथ कि मेरा ये मसला है, अपना प्रॉब्लम डिस्क्राइब पूरा करें, और फिर उस पर लिखें कि हमें अकोमोडेट करें, और साथ में आप अपनी रेलेवेंट असाइनमेंट जो है वो अटैच कर दें। अब चूँकि जिन लोगों ने टाइमली सारा कुछ किया है उनके साथ आप कंपेयर नहीं किए जा सकते। अगर उनको मैंने 5 मार्क्स में से वैल्यूएट किया तो आपको 4 में से वैल्यूएट करूँगा, यानी कम मार्क्स में 1 नंबर बाय डिफॉल्ट कम हो जाएगा, अदरवाइज इंसाफ नहीं रहेगा। तो जिन्होंने काम किया है, टाइम पे किया, सही किया, उनको उनका वेटेज मिलना चाहिए। नंबर 2, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे अपने पर्सनल आईडी से ईमेल की हुई है कि हमें एक्सेस दें स्लाइड्स तक, जो हम ये वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं या लेक्चर की स्लाइड्स हैं। तो चूँकि आप लोग अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी से नहीं करते, ये प्राइवेट से करते हो, तो फिर वो आपको एक्सेस ऑटोमेटिकली नहीं आती। अब मैंने आपका ये मसला हल करने के लिए ये किया है कि अपने यूट्यूब चैनल पे सारी वो स्लाइड्स रिकॉर्डिंग्स अपलोड की हैं, और उसकी सारी लिंक्स जो हैं वो मैंने आपको गूगल ड्राइव में रख दिए। आज तक के प्रीवियस जितने तमाम लेक्चर्स हैं सब की वीडियो गूगल ड्राइव पे लिंक पड़े हुए हैं 1 2 3 4 5 के साथ। अब आप अपने ऑफिशियल या पर्सनल आईडी, किसी भी आईडी से उसको लॉगिन करके क्लिक करेंगे तो वो खुलना शुरू हो जाएगी, या वहाँ से आप कॉपी करें, गूगल में डाल के क्लिक करें तो वीडियो चलना शुरू हो जाएगी। तो आई थिंक सो कि अब आपको ईमेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्सेस के लिए, वहाँ से ऑटो होता रहेगा। तो मैं अब आज वाले भी अपलोड करके उसके जो यूट्यूब के होंगे लिंक्स वहाँ गूगल ड्राइव में रख दूँगा, ये हमेशा ऐसा ही हुआ करेगा। What is survey research? Survey research design are procedures in quantitative research in which investigators administer a survey to a sample to the entire population of people in order to describe the attitudes, opinion, behavior, characteristics of the population. बेसिकली जब हमारे पास रिसर्च कंडक्ट करने के लिए पॉपुलेशन का साइज बहुत बड़ा होता है
तो हम उसमें से कुछ सैंपल लेते हैं, सैंपल के ऊपर अपनी रिसर्च कंडक्ट करके यानी उनसे हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, उनकी ओपिनियन, उनकी बिहेवियर, एटीट्यूड के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जो हमें इंफॉर्मेशन मिले उसको यानी डाटा कलेक्ट करके उसका एनालिसिस करके हम उसको पूरी पॉपुलेशन पर जनरलाइज कर देते हैं। हम कह देते हैं कि ये सबका ही ऐसा ही एटीट्यूड है। फॉर एग्जांपल अगर हमने ये देखना हो कि सोशल डिस्टेंसिंग इन द कोरोना वायरस रिजीम लाहौर में ट्रेंड कैसा है, तो लाहौर की आबादी तो 1.5 करोड़ की करीब है और बहुत बड़ा फैला हुआ है, आप इतना सर्वे नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, लाहौर सिटी को एक ये पूरी पॉपुलेशन है तो इसमें से सैम्पलिंग कर लेंगे। 9 टाउन है, इसके 9 टाउन में से कोई रैंडमली आप ले लें, लोग 500 ले लें, तो वो नुमाइंदगी करेंगे सब टाउन्स की। अब उन 500 से जो डाटा लिया उसको एनालाइज करके हम कह देंगे लाहौर में ऐसा है, यानी 500 से लिया हुआ डाटा आपकी 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन पे जनरलाइज हो जाएगा। तो सब के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम उसी में ही हम कहेंगे रिसर्च के रिजल्ट्स में, तो सब ऐसा ही कर रहे हैं। यानी ऑथेंटिक माना जाएगा कि जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल था उसके जो रिजल्ट्स हैं वो पॉपुलेशन के ही रिजल्ट्स हैं। तो researchers are often interested in opinion of a large group of people about a particular topic or issue. There are 3 major, जी हमारा बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे पूछना था कि जो सर्वे रिसर्च डिजाइन होगा उसमें जो सैम्पलिंग टेक्निक होगी वो रैंडम होगी? So there are 16 sampling techniques. Random is one of them. और रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक की अपनी 7 टाइप्स हैं। सिंपल रैंडम है, किस तरह की है? तो टू योर क्वेश्चन आंसर इज दिस, यस, इन सर्वे टेक्निक्स always sampling technique will be random, but it will be the one of the type of the random sampling, and we will study all these sampling techniques. Is it okay? Yes sir, thank you sir. Well, there are 3 major characteristics in the most survey processes. Information is collected from a group of people in order to describe some aspects of the population. This is given one example. The information is collected by asking questions of the members of selected group. Information is collected from a sample rather than from every member of the population. जहाँ बिल्कुल पॉपुलेशन कम हो वहाँ 100% सारी पॉपुलेशन से ही इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, तो उस तरह की पॉपुलेशन को सेंसस पॉपुलेशन कहते हैं। यानी जहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल और पॉपुलेशन इक्वल हो जाए, दैट इज द सेंसस पॉपुलेशन। अदरवाइज जहाँ 1000 से ज़्यादा, 500 से ज़्यादा लोग हों, फिर वहाँ हम सैम्पलिंग करते हैं और पॉपुलेशन बड़ी पे उसको जनरलाइज कर देते हैं। Why are surveys conducted? The purpose of survey is to describe the characteristics of population. Researchers find out how the member of population distribute themselves in one or more variables. Selected sample is surveyed and the description of the population is inferred from what is found out about the sample. Descriptive surveys, researchers are not as concerned about why the observation distribution exists. Distribution normal होनी चाहिए। तो ये 3-4 वजह है, वजूहात है जिनकी वजह से सर्वे कंडक्ट किया जाता है। तो पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करना होता है और कहाँ वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं, किन वेरिएबल्स में लोग, और सैंपल बाउंड करने के लिए, देखने के लिए कहाँ तक वो इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ये इसके लिए किया जाता है। ये सेशन हमारा एक्सपायर हो रहा है विदिन 2 मिनट्स। नेक्स्ट सेशन के लिए मैंने आज के 4 सेशन के लिए आईडी और वो उधर पोस्ट कर दिए हुए हैं, एक ही दफ़ा वहाँ से ले लें और उसमें आप अपलोड कर सकते हैं, सेशन नए में ज्वाइन कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ सर्वे डिज़ाइंस, यानी रिसर्च के अपने डिज़ाइन हैं जिनमें से एक डिज़ाइन सर्वे डिज़ाइन है और इसकी आगे अपनी टाइप्स हैं, सर्वे की अपनी टाइप्स हैं। मेजर 2 टाइप्स इसकी हैं। नंबर 1 है लॉन्गिट्यूडनल और नंबर 2 है क्रॉस सेक्शनल। ओवर टाइम जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल है और 1 पॉइंट इन टाइम जो है वो क्रॉस सेक्शनल है। ट्रेंड्स इन द सेम पॉपुलेशन देखने के लिए लॉन्गिट्यूडनल हम करते हैं और सब पॉपुलेशन ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं बाय कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको कोहोर्ट कहते हैं। कॉमन चेंज इन द सैंपल पीपल ओवर टाइम पैनल। तो लॉन्गिट्यूडनल की 3 टाइप्स हैं, ट्रेंड, कोहोर्ट और पैनल। इन 3 चीज़ों को देखने के लिए लॉन्गिट्यूडनल सर्वे डिज़ाइन कंडक्ट किया जाता है ताकि
पॉपुलेशन और सैंपल के अंदर खास तौर पे किस तरह का ट्रेंड है। क्रॉस सेक्शनल में एटीट्यूड्स और प्रैक्टिसेस कम्युनिटी नीड्स और प्रोग्राम एवेल्युएशन के लिहाज से काम करते हैं। ग्रुप कंपैरिजन और नेशनल असेसमेंट, इसकी 5 क्रॉस सेक्शनल डाटा कलेक्शन जो टाइप है वो 1 पॉइंट इन टाइम है, इसकी 5 एग्जाम है। एटीट्यूड प्रैक्टिसेस मेजर करने के लिए, कम्युनिटी नीड्स को मेजर करने के लिए, प्रोग्राम एवेल्युएशन के लिए, नेशनल असेसमेंट के लिए और ग्रुप कंपैरिजन के लिए। ये जो आपका नेट है, नेशनल असेसमेंट टेस्ट, या गैट है, ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट, ये क्रॉस सेक्शनल में ही फॉल करते हैं, इनको यहाँ आके ही असेस किया जाता है। एयर एज लॉन्गिट्यूडनल में ट्रेंड, कोहोर्ट और पैनल, इन 3 चीज़ों को मेजर करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ सर्वे डिज़ाइन इन ट्रेंड स्टडी, अ फ्यू सिलेक्टेड फैक्टर्स आर स्टडीड कंटिन्यूअसली ओवर द टाइम, जिसमें फॉर एग्जांपल हमने ट्रेंड सर्वे करना है लैंग्वेज के बारे में, तो ब्रिटिश काउंसिल, ऑनलाइन सर्वे, रैंडम सैम्पलिंग, ये 3 ट्रेंड्स हैं। इनके जरिए हम लैंग्वेज का मेजर कर सकते हैं। क्योंकि ब्रिटिश काउंसिल में आपको पता है ना कि आयट्स वो 4 प्रैक्टिस मेजर करते हैं, तो आपकी प्रोनाउंसिएशन बोलना, हियरिंग सुनना, ऑनलाइन भी इसको मेजर कर सकते हैं। In cohort study, a group of people sharing common features or aspect behavior is studied.